In today's lecture, we will discuss about BCD code. BCD is the acronym for binary coded decimal. This is a number system which is a weighted code and is also known as, because this is weighted code, so each digit has a corresponding weight associated with it. So this is also known as 8421 code because this is a weighted code, because जो भी डिजिट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेट है. सो दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो अ weighted code. So this is a system BCD. This is a system of writing a decimal digit or a number. Decimal digit or a number means we know that the range for the decimal system is 0 through n, 0 through 9, because the decimal number system has the base 10. So it is a system of writing a decimal system, decimal digit from 0 to 9 as a 4-digit binary code. We will explain with the help of examples. But if it is the decimal number system having the value more than 9, it means if it is having 2 or more number of digits, then it means the numbers greater than 9, greater than 9, 9 means that is having 2 or more digits, not a single digit but 2 or more digits, then they are assigned BCD code डिजिट बाय डिजिट. क्या मतलब इसका कि हम हर डिजिट को इंडिविजुअली ही ट्रीट करेंगे एंड वी विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, सो फॉर एग्जांपल we have, suppose we have number 5 which is in decimal system. So to write it in BCD code, I told you that we need to write 1, 2, 4, 8 for each individual digit. So how 5 comes? 1, 1, 5, and the place values which are not used, they are assigned 0. So this is a BCD. Same way, say for example, now consider the second case, greater than 9. For example, 7, 9 and 8. So now here 3 digits are there, and we told that we treat the all digit one by one. So here 3 digits means we have, and we need to proceed from right to left. So 3 groups, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8 and 1, 2, 4, 8. So now 8 becomes 1, 0, 0, 0, 8. 9 means 1, 1. This is 9 and 0, 0. 7 means 0, 1, 1 and 1. So this is a BCD code. And same way, consider another example in which the number is not given in decimal, instead the number is given in binary.
Say for example 1 0 1 0 1 1. So suppose this number is given in binary and we need to convert it into BCD. So what we will do, the first step will be first convert this number into decimal. So we know that the easiest way to convert this number into decimal is to check number of digits 1 2 3 4 5 and 6. So we will write it as 1 2 4 8 16 32 1 2 3 4 5 6. ओके, अब ये नंबर सीधा लिख लो 1 0 1 0 1 1 और फिर इसको जहाँ जहाँ पे 1 1 है वो कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट है उनको ऐड कर लो. 32 + 8 40, 42 + 1 43. तो ये आ गया हमारे पास 43 और ये हमारे पास किस में कन्वर्ट होके आ गया, डेसिमल में. सेकंड स्टेप है इसमें कि अब जो डेसिमल में नंबर आ गया है उससे आगे तो हमें पता ही है कि कैसे ट्रीट करना है. तो जब हमारे पास 43 इसमें आ गया डेसिमल में, तब हमें पता है कि हमने क्या करना है, दो ग्रुप बनाने हैं 1 2 4 8 के. 1 2 4 8 1 2 4 एंड 8 और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख देनी है. तो 3 कैसे बन गया हमारे पास, 0 0 1 1, दिस इज 3. और 4 कैसे बना, 0 1 0 0. सो द फाइनल रिजल्ट इज 0 1 0 0 0 0 1 1. सो दिस इज इन BCD. सो ये नंबर हमारे पास बाइनरी में था और ये हमने BCD में कन्वर्ट कर दिया. सेम वे हमारे पास किसी भी टाइप का कोई भी नंबर हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं BCD नंबर में. अब हम देखेंगे कि हम BCD की एडिशन कैसे करते हैं. जो BCD एडिशन है उसमें कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं जो कि आम बाइनरी एडिशंस में नहीं यूज़ होते. तो वो क्या रूल्स हैं, तो फर्स्ट आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऐड, ये स्टेप्स बता रहे हैं हम आपको, ऐड द गिवन नंबर्स यूजिंग द रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशंस. जो हमने बताया था कि कैसे बाइनरी एडिशन करते हैं, सिंपली पहले बाइनरी एडिशंस के ही रूल्स आपने अप्लाई करने हैं. फिर आपने देखना है कि जो सम आया है वो कैसा है. तो इसका मतलब हमने क्या करना है आगे, चेक द रिजल्ट. अब जो रिजल्ट है उसकी जो वैल्यू है वो अगर लेस देन और इक्वल टू 9 है, यस अगर है तो सम की वैल्यू, देन दिस इज अ वैलिड BCD नंबर. और अगर नहीं है, नहीं का क्या मतलब हुआ कि जो रिजल्ट आया वो ग्रेटर देन 9 आया अगर, तो उस वक्त क्या करना है, या जब भी आपने सम लिखा जो रिजल्ट आया उसमें आपने ये भी चेक करना है कि कहीं कैरी तो नहीं जनरेट हुई. मीन्स इफ कैरी इज ऑल्सो जनरेटेड, अगर ये दो केसेस हैं कि रिजल्ट भी ग्रेटर देन 9 है या कैरी भी जनरेट हुआ है, इन दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, देन दिस इज अ इनवैलिड BCD नंबर. अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, मतलब अगर जो सम है वो ग्रेटर देन 9 आ जाता है तो भी, और अगर कैरी भी जनरेट होती है तो भी, ये एक इनवैलिड BCD कोड बन जाएगा. तो इसको फिर वैलिड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है सम,
उसमें हम ऐड कर देते हैं 6 का हमें पता है कि जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। देन ऐड 6 टू द रिजल्ट। मतलब दोनों केसेस में अगर रिजल्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 9 है तो भी, अगर ग्रेटर देन 9 नहीं है लेकिन कैरी जनरेट हुआ है तो भी एक इनवैलिड बीसीडी कोड है। उसमें हम ऐड क्या करेंगे, अब 6 ऐड कर देंगे। 6 ऐड करने से वो वाला नंबर भी जो है वो एक हमारे पास वैलिड बीसीडी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम 6 ही क्यों ऐड करते हैं। इसका कारण ये है, फॉर एग्जांपल हम इसको एक ये ऐसे सर्कल से समझाते हैं। मान लो 0 से लेके 9 तक जो रेंज है वो वैलिड है, ठीक है। अब इसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 कितने स्टेप्स बने, 1 2 3 4 5 6। दीज आर एक्चुअली इनवैलिड स्टेट्स। सो इनवैलिड स्टेट्स को स्किप करना हो अगर, तो हम देखें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे 6 स्टेप्स जाना पड़ेगा। इसके लिए 5 4 3 2 1, पर हम हर नंबर के लिए इंडिविजुअल नंबर ऐड नहीं करेंगे, इससे हमारा एल्गोरिथम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इन जनरल हम क्या करते हैं कि हम इस इनवैलिड रेंज से वैलिड रेंज में आने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें 6 ऐड कर देते हैं। इसके 6 ऐड करने से जो इनवैलिड रेंज थी वो भी वैलिड में आ गई। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी ऐड 6 टू द नंबर। सो ये जो हमने एक सॉर्ट ऑफ फ्लो चार्ट बनाया है, इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी हमारे पास एक सिंपल नंबर है 5 और हमने ऐड करना है इसको, मतलब ये आपका नंबर किस में है, डेसिमल में, और इसको आपने ऐड करना है 3 के साथ यूजिंग बीसीडी एडिशन। यूजिंग बीसीडी एडिशन तो हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल। पहले हम 5 का कोड निकालेंगे बीसीडी 1 to 4 8 को यूज़ करके, तो वो हमें पता है ये 5 हो गया। अब 3 का जो बीसीडी कोड है वो क्या बन जाएगा, 0 0 1 1। ये हमारे पास 2 नंबर आ गए। अब फ्लो चार्ट पे चलें। ऐड द गिवन नंबर यूजिंग रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन, तो 1 + 1 0, 1 कैरी, 1 + 1 0, 1 1 + 1 0, और ये कैरी और ये हमारे पास सम आ गया। मतलब हमारे पास एक किस्म का ये रिजल्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, चेक द रिजल्ट। इफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास बीसीडी में, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 8, क्योंकि हमने पता ही है हमने 1 to 4 8 फॉर्मेट को यूज करके बनाया है, तो 8 है। 8 का मतलब क्या है, दिस इज अ वैलिड बीसीडी नंबर। तो अगर वैलिड बीसीडी नंबर है तो इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास नंबर है फॉर एग्जांपल 4 9 7 2 8 5। इनको सपोज हमने ऐड करना है, तो सिंपल स्टेप पहले 7 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 1 1 1, ये 7 हो गया। 9 की वैल्यू कितनी आ गई बीसीडी में, 1 0 0 1, और 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 1 0 0। वही 1 to 4 8, 1 to 4 8 को हमने यूज करके किया। 5 क्या बन गया, 0 1 0 1, 8 बना 1 0 0 0, और 2 बना 0 0 1 0। अब हमने इन इंडिविजुअल जो ग्रुप्स बने हैं इनको हमने बाइनरी एडिशन से ऐड कर देना, तो 1 + 1 0 1 0 1 1 1, 1 0 ये हमारे पास सिंपल बाइनरी एडिशंस को रूल करके हमने ऐड कर दिया। अब देखिए ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 to 4 8 12,
तो ये हमारे पास क्या है, अब एक इनवैलिड नंबर बन गया ये। दिस इज इनवैलिड BCD। तो हमें पता है कि अगर ये इनवैलिड BCD है तो इसमें हमने क्या ऐड करना है, 6। तो ये हमने 6 ऐड कर दिया इसमें। अब यहाँ पे देखिए 1 2 4 8, ये तो 1 वैल्यू है, मतलब देखने से तो ये क्या लग रहा है, एक वैलिड है। लेकिन देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक कैरी जनरेट हुई है, कैरी इज जनरेटेड। तो हमें पता है कि अगर ग्रेटर दैन नंबर 9 है तब भी वो इनवैलिड है, तब भी हमने 6 ऐड किया। ये वाला नंबर में कैरी भी जनरेट हुआ है इस केस में, सो इसका मतलब ये भी इनवैलिड है। तो इसमें भी हम क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड कर देंगे इसमें भी है। ये कितना है, 7। तो इसमें तो कुछ भी ऐड नहीं करने की ज़रूरत। कुछ नहीं ऐड करने का मतलब क्या हो गया कि चलो सपोज हम 0 ऐड कर देते हैं। सो दिस इज़ अ वैलिड BCD कोड, दिस इज़ नॉट अ वैलिड BCD कोड, क्योंकि कैरी इज़ जनरेटेड। दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ वैलिड BCD कोड। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन सभी को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने 6 ऐड करना था। 0 1 1 + 1 0 1 1 + 1 0, कैरी गया, यहाँ पे पहुँच गया ये। अब ये रिजल्ट 6 ऐड करने के बाद अगर कैरी जनरेट होता है तब नहीं, हमने 6 ऐड करना है। 1 आया तो ये क्या बन गया, 1 + 1 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1, यहाँ भी 1 आया, ये 1 आ गया। और इसमें तो हमने कुछ भी नहीं ऐड किया था। तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम बन गया एडिशन करके। अब देखिए ये नंबर क्या बना हमारे पास, और ये नंबर क्या बना, और ये नंबर क्या बना, और फिर हम चेक करते हैं कि ये वाकई में रिजल्ट ठीक है। दिस इज़ 2, दिस इज़ 1 2 4 8 8 1 2 4 8 7। तो इसका मतलब रिजल्ट कितना आया, 782। दिस इज़ द एडिशन यूजिंग BCD सिस्टम। तो हम इसको भी देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए था। अगर सिंपल नंबर था डेसिमल में तो 782। देखिए, सो BCD को सिस्टम को भी यूज़ करके हम एडिशन कर सकते हैं, और हमने चेक भी कर लिया कि जो डेसिमल से एडिशन करके रिजल्ट आया है वो इसके बराबर ही है। सो दिस इज़ द वे हाउ BCD एडिशन इज परफॉर्म्ड, एंड दिस पर्टिकुलर रूल इज ऑल्सो अप्लाइड when we design a BCD adder. So keep it in mind, these rules, so that we can design easily the BCD adder. Thanks for watching.